the script writers in terms of how she's performed it, and yeah, she's more than lucky. I think we have a hard-working actor who helps us make the film look much nicer than it is. So thank you, Deepika. Hi, Deepika. Hi. Hi. This is Jasmine from Tribune. You worked on your accent in this movie, so it's an amazing accent. So how much did you work on that, and what was the research that you had to do on this? I've always been familiar with South Indian culture because I'm a South Indian myself, although I grew up in Bangalore, not Tamil Nadu. But growing up in Bangalore, it's very, very diverse. You have people from all over the country, and I've been surrounded by Tamilians. A lot of my friends and family friends are all Tamilians. So I was familiar with the culture, and I understand the language. What I needed to work on was how to speak Hindi with that accent. That is something that took me 4 or 5 days. Shahrukh helped me a lot with that, and the writers, Rohit, we all sort of brainstormed over 4 or 5 days, and we saw a lot of videos. And I also had a tutor and a trainer from Chennai itself who's taught me how to speak, who taught me all the Tamil dialogues. But that's it. And then she's compiled the whole dictionary of those words called the Bakwas Dictionary. This is the dictionary which has got all the words that she's learned. So all my words and dialogues and all will probably be available in stores soon. I don't have it in the movie. This is just growing. My hair is growing now. I haven't had time, so I haven't cut it. And all the girls keep telling him that he looks very cute with a ponytail. So he's growing. You don't like me like this? Hi, Shahrukh. In the movie, there is no purpose at all. Just girls like it, so I've kept it. Please, may I? I mean, if you are very kinky, yeah? Hi, sir. Sir, Nikhil here from Daily Post newspaper. Sir, like they said, this is your second collaboration with Deepika Padukone after this blockbuster of Om Shanti Om. And why it took 5 years? मतलब इसके बाद आप भूल ही गए दीपिका जी को कि क्या सर? भूल ही गया, मेरे को याद नहीं। 5 साल लगे। हाँ, 2-3 बार पार्टी में मिले, कौन हो तुम? No, it's actually फिल्म की जो कास्टिंग होती है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर करते हैं, और अमूमन रोल के हिसाब से जितना किया जाए उतना बेहतर होता है। 1-2 बार हमारे साथ फिल्मों की कहानी हमने सुनी भी, कुछ इसने नहीं की, कुछ मैंने नहीं की। कभी वक्त का तकाजा था, कभी कभार कहानी नहीं समझ आई, तो ऐसा हुआ नहीं चांस। और जैसा दीपिका जी ने अभी बताया, हम हमेशा यही सोचते थे कि जब हम अगली फिल्म करेंगे ओम शांति प्रिया के कैरेक्टर के बाद, इनके लिए उस फिल्म के अंदर फिर से कुछ कैरेक्टर होना चाहिए, एक रेगुलर हीरोइन नहीं कि गाने गाए, 2-4 सीन किया और ख़त्म हो गया। तो ये फिल्म में जब हमने सोचा था, वैसे भी साउथ इंडियन लड़की चाहिए, और हर किस्म से, नॉट ओनली जस्ट बिकॉज शी साउथ इंडियन, बट हर किस्म से जो हमको एक्ट्रेस या कैरेक्टर बनाने के लिए चाहिए था और फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो दीपिका जी उसमें फिट होती थी। तो हमने उनसे पूछा, तब भी ऐसा लग रहा था शायद ना कर सकें वक्त की वजह से, बट सर्टन थिंग्स शी चेंज अराउंड फॉर अस एंड वाज काइंड इनफ टू डू इट। नमस्ते सर। गिर जाएगा आराम से। तो सूफिया आहूजा फ्रॉम पंजाब केसरी। ओके फ्रेंड्स, लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज। जी अभी शुरू तो करने दीजिए सर। जी डेफिनेटली। सर, इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर सदरन सिनेमा का एसेंस नजर आता है। कोटिंग फ्यू फिल्म्स लाइक सिंघम, वांटेड, उसके अंदर भी ऐसा है कि कोई फिल्म है जिसे साउथ से कॉपी किया गया है या इंस्पायर किया गया है या अडेप्ट किया गया है। एनी स्पेसिफिक रीजन कि चेन्नई एक्सप्रेस भी उसी तरह की एसेंस में नजर आ रही है, बिकॉज नाम भी चेन्नई है और एसेंस भी साउथ का है? अगर ऐसा लग रहा है तो फिर गलतफहमी है, और देन मेरी मार्केटिंग ऑफ द फिल्म थोड़ी गलत है, क्योंकि जिन फिल्मों के नाम आपने लिए बहुत अच्छी फिल्में हैं, लेकिन रीमेक्स हैं और उसी के कल्चर में बनी हैं जैसे बनी हुई थी। आई थिंक एंड फैंटास्टिक फिल्म। रोहित ने एक्चुअली सिंघम तो रोहित ने खुद बनाई है, बट मेरे हिसाब से ये फिल्म जो है एक जर्नी है नॉर्थ इंडियन लड़के की साउथ में, और हम काफ़ी बारी ऐसा होता है, मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसे ही था। मेरे फादर नॉर्थ के थे, मदर हैदराबाद की थी, तो कुछ अजीब सी सिचुएशंस में कॉमेडी और फ़नी चीज़ें आती थी। हिंदी फिल्म में अमूमन हमने साउथ इंडिया का इतना इस्तेमाल नहीं किया है, पंजाब का बहुत किया है, तो ये पहली बार इतना किया गया है। और हमने जो फिल्म बनाई है उस ओरिजिनल कहानी से बनाई है, जिसके ऊपर ये फिट बैठती है। सो इट्स अ जर्नी, बट ऑफ कोर्स आप जैसा कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर हमने ऑनेस्टी ये रखी है
कि अगर गाने किए हैं तो वहीं साउथ इंडिया के जो कोरियोग्राफर्स हैं राजू सुंदरम जी या चिन्नी प्रकाश जी, उनको बुलाया और कहा वैसे ही करो जैसे उस कल्चर में होता है। अब तपन कुटू हार्डकोर 1 2 3 4 एक्चुअली साउथ इंडिया का फ्री, जैसे यहाँ का भांगड़ा है तो वहाँ का तपन कुटू तो उसी स्टाइल में किया जाए। सो इफ़ यू सी रिफ्लेक्शन ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स इन इट, इट इज़ बिकॉज द कल्चर has been tried to be recreated, not because it's a remake or trying to make it look like a South Indian film. Similarly, to say when Deepika is dressed up in a certain kind of a sari or what is it called, pata pauda, it's not because we are trying to recreate an actress to look like a South Indian actress. She's playing a South Indian character, and all the people in the film are playing South Indian characters, so they're dressed alike. And 99% of the team in the film that you see on film is actually Tamilian and actors from Kerala. So perhaps it gives you the impression that it's like a South Indian film because it's set there. हाय शाहरुख, पनवीर सिंह वालिया स्पोक्समैन से। एक तो आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया, मेरे को पता चला अभी भी आपने टाइटल्स में जो हीरोइन का नाम पहले करने का शुरू किया इस साल से, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। Thank you, Jay. और उसमें एक बात और बढ़िया की आपने, आज फिल्म में भी ट्रेलर देख रहा था तो कोई मैं शायद पहली बार किसी हीरो को देखा भी, हाँ मैं 40 साल का हो गया हूँ, तो क्या लेडीज भी बराबर है? दीपिका ने ऐसा क्यों नहीं कुछ कहा? नहीं, मैं कह सकता हूँ जी मैं 20 साल का हूँ तो मैं कहूँ तो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता किसी को। अगर 50 साल की लड़की ऐसा बोले तो अच्छा थोड़ा नहीं लगता है। बट एक्चुअली लोग ऐसा समझते हैं कि बाहर से हम फिल्म के अंदर अपने कैरेक्टर को जब प्ले करेंगे, एक्चुअली वीर ज़ारा में मैं 65 साल का था, सो कैरेक्टर है और कहीं ना कहीं पर हमारी ऑडियंस, आप लोग जो हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे हैं, करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, उसको एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि ठीक है ना यार, जो उम्र है वो अगर आदमी कर रहा है, प्ले कर रहा है तो ठीक है। सो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न। एंड जो हमने हीरोइन का नाम आगे रखा है, आई थिंक वो एक उसका सिंपल बात ये है कि बहुत सारे रूल्स बन गए हैं कि हीरो का नाम आखिर में आना चाहिए, और इससे थोड़ी सी इंशाल्लाह लोगों में जागरूकता आएगी कि यार एक इक्वालिटी होनी चाहिए मेन एंड विमेन में। एंड आई एम श्योर दीपिका को अगर कभी भी किसी फिल्म के अंदर जो भी एज प्ले कर रही हैं, अगर अपनी से बड़ी कर रही हैं, शी इज़ अ वेरी यंग एक्ट्रेस, आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट सुपरस्टार्स वी हैव। But if she's playing an older person in a film, I'm sure she'll say it. If she's playing a younger person, she'll say it. If she's playing her age, she will say it if the character demands it. Personally, ना मैं आपको अपनी एज बताऊंगा ना दीपिका बताएंगे। Okay, last question. मेरे तो जो साथ बैठते हैं वो बेस्ट एक्टर होते हैं, तो इस वक्त संग में तो दीपिका है। नहीं, मुझे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इंडिया, मतलब आप लड़कियों में पूछ रहे हैं कि सब गर्ल्स में? आई थिंक दीपिका इज़, मैं बार बार बोलता हूँ, शी इज़ लाइक एन एपिटमी ऑफ एन एक्टर स्टार इन इंडिया, हर किस्म से, रूप में, आई थिंक बातचीत करने के ढंग में, डांस में जो इंडियन फिल्मों में ज़रूरत होती। आई थिंक जो बाकी भी 2-4 एक्ट्रेसेस हैं जैसे माधुरी जी वगैरह, मैंने जो काम किया सुपर्ब है। आजकल के अंदर एक्चुअली इफ़ यू सी ऑल दी एक्ट्रेसेस जो कैरेक्टर प्ले करती हैं, चाहे वो कटरीना जी हैं या प्रियंका जी हैं या करीना जी हैं, they all are ready to play characters. Any actress who's ready to play characters and works hard on it are good. एक को ऐसा पिकअप करना ले लियो, like मजाक से we can have a joke about it, but बहुत patronizing और अजीब लगता है। कोई दौड़ तो है नहीं, होड़ तो है नहीं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। अपनी अपनी जगह, अपने अपने मुकाम पर बहुत खूबसूरत काम करती हैं। But honestly, because I'm working with her, I started her career in a sense in terms of Om Shanti Om. I feel very close to her, and I'm extremely proud, to, without sounding patronizing, that genuinely right now in this country she's one of the finest actor stars we have and we've had for a long time. Okay. Thank you very much, guys. मैं फोन करके बताता हूँ आपको। Hello. Thank you very much. Hello, Okay. sir. May I please request Shahrukh and Deepika, so let's go for the photo. The macho babe. Okay, we'll have just one second. एक मिनट यार। Last question. Let's have 2-3 questions more यार। हाँ, 3 क्वेश्चन। Okay, last two. आराम से। The last 2 questions, please. Darling, why are you screaming? सर, आप पंजाब में प्रमोशन के लिए आए हैं। सर, अर्पिता फ्रॉम दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर। जी। सर, आप पंजाब में प्रमोशन के लिए आए हैं, बट ये जो पिक्चर है ये साउथ इंडियन टच में है, तो आपको क्या लगता है पंजाब में ये कितनी चलेगी?
अगर आप लोग पंजाब में भी उतना ही प्यार करते हो जितना साउथ में होता है, ईस्ट में होता है, वेस्ट में होता है, तो बहुत चलेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। मैं तो नॉर्थ का ही हूँ ना पिक्चर में। सर मनीष जी। फ्रॉम दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर। जी। सर यश राज चोपड़ा जी को लास्ट टाइम बोला था कि आप समर्पित करेंगे ये फिल्म, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है इस फिल्म में, जबकि रजनीकांत को ज़्यादा दिखाया गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि रजनीकांत की सिर्फ फोटो ली गई है, उसको मतलब डायरेक्टली उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? पहले तो ये कंपैरिजन बहुत अजीब है आपका रजनी सर का और यश जी का। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स। ये मुझे अजीब लगता है आप ये जो बात ही पूछ रहे हैं मुझसे। बट मेरी तो जो भी काम होगा प्यार से, मेरे फादर समान है यश जी, तो उन्हीं को समर्पित होगा। अब आप अगर ऐसा बोल रहे हैं कि उसके इमेजेस क्यों नहीं है, वो नहीं होंगे क्योंकि वो आई थिंक इज्जत कम करना है हर फिल्म में से उनके इमेजेस डालना। आई थिंक वी रिमेंबर हिम हिज मेमोरीज इवन व्हेन आई वाज ड्राइविंग हियर। मैं दीपिका को रास्ते में यही बता रहा था कि कितनी याद आ रही है मुझे यश जी की इधर आते हुए। एज फार एज सॉन्ग इज कंसर्न, ये गाना फिल्म का नहीं है, ये ट्रिब्यूट है रजनी सर को। और हमने पिछले 15-20 दिन में डिसाइड किया था जब यो सिंघानी जी ने गाना हमको दिया, और हमने रजनी सर से पूछ के उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उनका नाम थलाइवर इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। और इतने बड़े स्टार की डेट ऐसे 10-12 दिन के अंदर मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। हालांकि हमारे डिक्शनरी में नामुमकिन का वर्ड नहीं, बट वी कुड नॉट हैव, एंड व्हाट वी हैव डन इज़ आवर ट्रिब्यूट टू हिम। इट इज़ नॉट अ सॉन्ग। अपनी ट्रिब्यूट के अंदर वो खुद आ जाएं तो बहुत अजीब सा भी लग सकता है। सो